Okay, start करते हैं. ये June 2021. This is paper 1-1. Okay. This is the equation of a curve is such that dy over dx equals to 3 over x power 4 plus 32x cubed. It is given that the curve passes through the point half comma 4. Find the equation of the curve. Topic integration है. Okay. dy over dx को इंटीग्रेट करूंगा and y ये टर्म ये हो जाएगी पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -3 और 32x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c. Okay. Here to calculate the value of c, you use the point 4 half -3 divided by -3, 32 half power 4 over 4 plus c. Okay. सारी चीजें कैलकुलेटर पे हो सकती हैं. You can put everything on a calculator as it is. आंसर खुद ही आ जाएगा. I don't need to worry about the calculations. कैलकुलेटर पे भी आसान तरीका ये होता है कि आप जो है वो हाफ की जगह 0.5 लगा दो. सही है. इसको टाइप करना आसान होगा फिर. ओके, मैं लगा देता हूँ सारा. 3 into 0.5 power -3 divided by -3 plus 32 into 0.5 power 4 divided by 4 minus 15 over 2 आ रहा है. And c जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 plus 15 over 2, 23 over 2. So the equation of the curve is y equals to ये बनेगा -x power -3 plus 8. ये वैसे रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस कर लेना चाहिए था. 8x power 4 plus 23 over 2. Okay. मार्किंग स्कीम खोल लो इसके साथ. Okay, that's correct. It says OE. OE का मतलब होता है और इक्विवेलेंट. आपकी कोई भी फॉर्म होगी, जैसे मैंने फिर -x³ लिखा हुआ है, -x power -3, तो सही आंसर होगा. Okay, 4 marks. Next question. The sum of the first 20 terms of an arithmetic progression. The arithmetic progressions are the first 20 terms. So n is 20 is 405. So sum of 20 terms is 405. And the sum of the first 40 terms is 1410. Okay. Simultaneous question लग रहा है. Simultaneous equations का formula वो simultaneous equations बनेंगी. Sum का formula लगा के, sum का formula क्या होता है? n over 2, 2a plus n minus 1 times d. So this becomes 405, 20 over 2, 2a plus 19d. Okay. Or the other one is 1410, 40 over 2, 2a plus 39d. Okay. चलो इसको यूं ही रहने देते हैं. 405 equals to 20a plus 190d and 141 equals to 4a plus 78d. Simultaneous solve करना है. Whichever way you feel comfortable, elimination, substitution, जो भी नजर आ रही है. You have to show me the working, at least in this question, because this question is primarily based on simultaneous equations. सही है?
कहीं आप skip कर सकते हो simultaneous equations when you get put things on a calculator and get done with it. Okay, नीचे वाली equation को 2 को 5 से पहले multiply कर रहा हूँ to generate the same number. Seven zero five 20A मैंने calculations of precise again and the sum of the first 40 terms is 1410. चल करके देखते हैं पता चलेगा एक और मैं देख लूँ यहाँ पे 1.5 or 6 1.5 or 6. Okay, 405 minus 705 is minus 300. This is 190. 190. So D is 1.5. Okay. And वाह सारे सुबह सुबह जाग रहे हो खैरियत है हमजा का मैसेज आया फिर अब्दुल्ला का मैसेज आया 190 जैसे मैंने दिया 190 A equals to 6. The question was find the 60th term. So term number 60, A plus 59B. 6 plus 94.5. Okay. मैं चेक कर आगे बढ़े find the first 3 terms in the expansion of this in ascending powers of x. Topic binomial expansion है. Okay. अब सबने बायनॉमियल एक्सपेंशन अलग अलग तरीके से सीखे होती है मैं इस तरह कराता हूँ मैं लिखता हूँ टर्म नंबर 1 इज nc0 a पावर n minus 0 b पावर 0 मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ okay this becomes 5c0 3 power 5 minus 0 minus 2x power 0 and the next term is 5c1 3 power 5 minus 1 minus 2x power 1 term 2 term 3 or 5c2 3 power 5 minus 2 minus 2x power. तो वही है ना that's what I've done. मैं पहली टर्म को 5 ये बनेगी a पावर n ही बाकी 2 टर्म 0 हो जाएंगे मैंने पैटर्न बनाने के लिए डायरेक्ट 0 से स्टार्ट किया होता है सही है मैंने वो पैटर्न क्रिएट किया हुआ है कि nc0 nc1 nc2 तुम अगर पहली टर्म को देखो तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा तो तुम्हारे पास बचेगा a पावर n ही that's what's written in the formula sheet. मैंने जनरली वो फॉर्मूला शीट को अवॉइड करना कहा होता है कि भाई बार बार फॉर्मूलाज देखने के लिए इसे मैंने याद कराया ओके एंड द पॉइंट इज दैट इस पे आगे नेक्स्ट ईयर बिल्डअप होगा P3 के अंदर भी बायनॉमियल एक्सपेंशन आती है ओके so 3 power 5 is 243 81 into 5 into 2 minus 8 10x 5c2 is 10 into 27 into 4 1080x square okay
मैं इनको वर्टिकल उसमें लिखता हूँ बिकॉज इट्स इजियर टू राइट. आगे जाके भी आपको नजर आएगा व्हेन यू डू P3 you'll find it easier if you write it in a vertical format. Okay. Then says hence find the coefficient of x square in the expansion of 4 plus x square into 3 minus 2x power 5. Okay. So ये वाला ब्रैकेट तो सिंपल है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल होल स्क्वायर एक्सपेंशन. और दूसरा वाला जो है वो ऊपर एक्सपैंड कर लिया मैंने. सही है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट बोथ एक्सपेंशंस. पहले मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ. ये बनेगा 16 प्लस 8x प्लस x स्क्वायर. और ऊपर से क्या आ रहा है 243 minus 810x plus 1080x square. Now, since I'm only looking for the coefficient of x squared, तो मुझे selective multiplication करनी है. मैं इस constant को इससे multiply करूंगा. 16 into 1080 कितना होता है 17280x squared. फिर 8x को तो ये minus 810 से. So this becomes minus 6480x squared. Okay, and then this x square go x constant say, so 243 x squared. So 17280 minus 6480 plus 243. Okay, कोफिशिएंट बताना है. उस पे बॉक्स बना दिया मैंने. सही है. अच्छा बी देख लो यहाँ पे. ये जो एक्सपेंशन होती है ना, ये तो अभी मुझे पूछा था सर आपने वो वाला फॉर्मूला. ये B1 लिखा होता है ना, इसका मतलब कोई मेथड के मार्क्स नहीं आते. तुम्हारा आंसर सही है तो तुम्हें मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे. तो टर्म सही होनी चाहिए, चाहे वो किसी तरह भी आए. आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लगा के मुझे लिख के दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, एज लॉन्ग एज यू गेट देम राइट. B1 का ये मतलब होता है बी इज अ मार्क इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड. कुछ भी मेथड करो, आंसर सही है तो मार्क्स मिलेंगे. दूसरे में मेथड के मार्क्स होंगे. ये M1 जो होता है वो मेथड का मार्क होता है. ओके, दिस नेक्स्ट वन इज द ग्राफ फॉर tan x. ओके, ये थोड़ा सा टफ लगेगा. सही है, इसमें बहुत सारी बातें. ओके, जब कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो पहले हमेशा ये बाय वाले टूटा करो. दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द फॉल्स एक्सिस. फॉल्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि कोई एक्सिस होती है जिसके इर्द गिर्द जो होता है वो ग्राफ आपको बैलेंस नजर आ रहा होता है. सही है. टिपिकली वो एक्स एक्सिस होती है जब वो होता है. बट यहाँ पे मुझे एक्स एक्सिस पे बैलेंस नहीं नजर आ रहा है. यहाँ पे मुझे यहाँ से टर्न होता हुआ नजर आ रहा है ना. यहाँ तक यूं है और फिर यहाँ से जो है वो उसका शेप चेंज हो गया है. तो इसकी एक्सिस कहाँ पे चली गई है? इसकी एक्सिस एक यूनिट ऊपर चली गई है. ओके, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू हो गई 1. ओके, ये x minus b, whatever is inside the bracket represents what? A movement on the x axis. कैसे पता चलेगा कहाँ मूव है? नजर आ रहे या नहीं? tan का ग्राफ वैसे कैसा होता है? यू 90 पे इंफिनिटी पे जाता है ना. ओके, अभी कहाँ पे इंफिनिटी पे जाता हुआ नजर आ रहा है? इधर ना, यूं करके जा रहा है. ऐसे ही हुआ है. वैसे यहाँ पे जाना चाहिए था. तो कितना आगे मूव हो गया ग्राफ? अब ये
मुझे रेडियंस में प्रॉब्लम लग रहा है, तो आलम ने मुझे कन्वर्ट करके बताया कि 45 डिग्रीज है। आई कैन ऑल्सो कन्वर्ट दैट इनटू डिग्रीज, इट्स इजियर टू सी इन डिग्रीज। तो आप डिग्रीज में कन्वर्ट करके बता दें, दोबारा जो है वो फिर आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सही। इफ आई वांट टू कन्वर्ट समथिंग टू डिग्रीज, सिंपल सा तरीका होता है कि पाई की जगह आप 180 लगा दें। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ कन्वर्ट करके कि ये 45 डिग्रीज आगे मूव हो रहा होगा, ये 135 आ रहा है, विच मीन्स इट हैज मूव्ड 45 डिग्रीज फॉरवर्ड। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्रीज और पाई ओवर 4। यहाँ पे रेडियंस में लिखना है, इसलिए पाई ओवर 4 लिखेंगे। सही है, तो 45 डिग्रीज नहीं लिखना, बिकॉज इट सेज बी शुड बी बिटवीन 0 एंड पाई। ओके, जब दो वैल्यूज आ जाएं, ये तीसरी वैल्यू निकालना बहुत सिंपल होती है। पहले मैंने दो की वैल्यू लगा दी, मैंने कहा कि आई हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज tan x minus pi over 4 plus 1। ओके, नाउ अगर कोई एक अननोन बचा है तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि यू कैन पिक अप एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ एंड प्लग इट इन एंड फाइंड योर आंसर। मुझे सबसे आसान पॉइंट ये नजर आ रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, -1, सो y की जगह -1, x की जगह 0, बाकी सब कैलकुलेट, सॉरी ए है, बाकी सब कैलकुलेटर पे लग जाएगा। tan माइनस पाई ओवर 4 अगर आप कैलकुलेटर पे लगाओगे तो -1 दे देता है। ओके, सो a is 2। okay, the false axis is the easiest to find, left and right movements are the next thing that we should look for, कि क्या स्ट्रेचिंग हुई है, मूवमेंट हुई है, जो भी हुई है। सही है। अगेन इसकी जब मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा तो इसमें कोई मेथड का मार्क नहीं है, एज लॉन्ग एज यू गेट इट करेक्ट। ओके, वो किसी तरह भी लेकर आओ, सिर्फ देखने से पता चल रहा है, देख के लिख देते सारे। ओके, सो a2 c1 and b pi over 4। सही, आगे बढ़ो। लिख रहे हो तुम, जल्दी से लिख लो। क्या नाम है तुम्हारा? Okay, now this question is about geometric progressions. So surprisingly इस पेपर में दो सवाल हैं प्रोग्रेशंस के ऊपर, एक ज्योमेट्रिक का था, एक ज्योमेट्रिक का इससे पहले वाला जो था वो अरिथमेटिक का था। ओके, the fifth, sixth and seventh terms of a geometric progression are respectively this: given that k is negative, find the sum to infinity of the progression. So sum to infinity क्या होता है? a over 1 minus r। ओके, इसके लिए a चाहिए होगा, यानी k की वैल्यू चाहिए होगी, एंड r भी चाहिए होगा। r कैसे निकलता है? कोई भी दो टर्म्स को डिवाइड करके, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करते हैं तो r निकल आता है। सही है, पहले मैंने इसको डिवाइड किया, इन टर्म्स ऑफ क्या आया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे वाले को भी डिवाइड करता हूँ। व्हेनेवर यू हैव एन अननोन इन द क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू डू इज इक्वेट टू आर्स। जब आप इक्वेट करेंगे दो आर्स को तो खुद ही जो है वो अननोन की वैल्यू निकल आती है। व्हेन आई देन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, आई गेट 144 equals to 16 k square, k square equals to 9, k equals to plus minus 3, उसने कहा k is negative, so k is equals to -3। ओके, फिर a जो है वो 8k है, 8 into -3 gives me -20। ओ सॉरी सही है, अच्छा ये फिफ्थ टर्म है, सॉरी माय बैड, a शुड बी, हाँ टर्म नंबर 1 निकालनी पड़ेगी, ये फिफ्थ टर्म है ना। ओके, टर्म नंबर 5 है, सही है। टर्म नंबर 5 इज टेक्निकली ar पावर 4। ओके, ये 8k है। सो अभी मेरे पास r की वैल्यू नहीं निकली, पहले मैं r की वैल्यू निकाल लूं। r की वैल्यू निकालना सिंपल है, -12 over 8 times -3, हाफ। ओके, हाफ
384. ओके ओके, सो ए और आर दोनों आ गए, सम टू इन्फिनिटी निकाल सकता हूँ मैं, -384 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। चेक कर लूँ मैं आंसर पहले। सही है। ओके आगे बढ़ा मैं। अभी कहते हैं इक्वेशन ऑफ द कर्व y equals to this where k is a constant, the line y equals to 3x minus 4 is a tangent to the curve। कौन सा टॉपिक है ये? टेंजेंट का मतलब हर दफा डिफरेंशिएशन नहीं होता, सही, कभी कभार क्वाड्रेटिक्स भी होता है, खास तौर पे जब ये के अननोन आ जाए ना तुम्हारे सवाल में, तो याद रखना कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन राइट नाउ, ऑल्दो समटाइम्स दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद डिफरेंशिएशन और विद क्वाड्रेटिक्स, बट ख्याल ये रखना कि जब इस तरह मैंने दो तुम्हें इक्वेशंस दी हुई हो ना, तो आई एम मोस्ट लाइकली टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स में किस सब टॉपिक, वो जो रियल रूट्स नॉन रियल रूट्स, सही है, ये वो वाला टॉपिक है। ओके जब पहले इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, फिर इस इक्वेशन को कहेंगे कि वो टेंजेंट है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 ऑफ व्हाट? ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन। रिजल्टिंग इक्वेशन का मतलब साइमल्टेनियस सॉल्व करके। ओके सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली फर्स्ट। ये बन जाएगा 3x माइनस 4 2k माइनस 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस k माइनस 2। आई एम नॉट एक्सपैंडिंग इट क्योंकि मुझे कोफिशिएंट्स उसी तरह चाहिए होते हैं। ओके मैं सबको एक साइड पे मूव कर लेता हूँ। 2k माइनस 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 3x एंड प्लस 4 माइनस k टाइम्स माइनस 2। So b square minus 4ac is equals to 0. b is minus 3 minus k minus 3. a is 2k minus 3 and c is 4 minus k plus 2. Now, the most common mistake that I see in the exam is expanding this minus k minus 3. सही है, अगर आपको इसकी एक्सपेंशन नहीं पता तो आप इस तरह कर लें। वैसे इसकी एक्सपेंशन क्या होती है? जो a प्लस बी होल स्क्वायर की होती है। सही है, तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9। ओके अगर आप ब्रैकेट भी एक्सपैंड कर रहे हैं इस तरह, तो भी आपके पास यही आंसर आना चाहिए। ओके नाउ मैं भी 4 को बाहर रहने देता हूँ, पहले मैं इस ब्रैकेट को अंदर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे। 6 माइनस के। ओके हमें केयरफुली एक्सपैंड करना है। ये बनेगा 12k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 18 प्लस 3k माइनस 2k स्क्वायर प्लस 15k माइनस 18। $72। Okay, quadratic. I can do that on a calculator.
k equals to 3. There's just one solution, k equals to 3. Okay, मैंने quadratic calculator पे कर दिया है, वहाँ मैं आंसर चेक कर लेता हूँ. ओके, वैसे quadratic का solution दिखाना जरूरी होता है ऐसे questions में. So what you should do is you should at least write this minus b plus minus root of b squared. हाँ, मेथड के लिए मैं दिखा देता हूँ मेथड का मार्क. ये लिख के बस कैलकुलेटर पे लगा दो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इसमें. सही है, बिकॉज ये यहाँ पे कहते हैं ना कि सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग देयर थ्री टर्म इन क्वाड्रेटिक. सो सॉल्व हुआ नजर आना चाहिए टू गेट दिस मेथड मार्क. ओके ओके, 6th क्वेश्चन हो गया. आगे बढ़े, आराम लिख लिया. ओके, the next one is I think बहुत सारे लोगों से नहीं हुआ. Okay, now you can either choose to solve this from the left hand side or from the right hand side. लेफ्ट से मुश्किल है, सही है, राइट से ज्यादा आसान है. 2 मार्क्स का सवाल है, पहले मैं राइट से कर देता हूँ फिर मैं लेफ्ट से करके दिखा दूंगा तुम्हें. सही है. ओके, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड से कर रहा हूँ. राइट हैंड साइड से बहुत आसान है एंड यू कैन सिंपली गो ऑन एंड राइट. ओके, cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर. सही है, cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर. सही है. तो ये राइट हैंड साइड से तो बहुत सिंपल था. लेफ्ट हैंड साइड से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज आप लोगों ने जो है वो इसको ये करने की कोशिश की थी. a lot of you ended up doing this. बहुत सारे लोगों ने यूं लिखा, ये cos स्क्वायर थीटा कर दिया, अब ये बन गया 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा और ये बन गया. फिर 1 ओवर cos स्क्वायर को रिमूव करना मुश्किल था. इसमें ट्रिक ये थी, if you want to do it from the left hand side, what you do is आपने इसको ब्रेक करना है. ओके, सो ये बना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. Okay, it was the numerator that had to be broken first in order to generate a cos square theta generate करने के लिए. सही है, 2 मार्क्स गई. तो ये अपने ये आइडिया ओपन रखा करें कि अगर आपसे लेफ्ट हैंड साइड नहीं काम की आप राइट हैंड साइड पे फौरन शिफ्ट हो जाए, वो काम करेगी. ओके, समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह चैलेंजिंग होते हैं. ओके, मूविंग ऑन. ठीक है, hence solve. ओके, सो इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये था. ओके, equals to 2 tan power 4 theta. So this is essentially a disguised quadratic equation in tan theta. Okay, if I want to write it, I can write it as a quadratic. मैंने कहा u एक वेरिएबल ले लेते हैं जो tan स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट करे, तो ये बनेगा 2u स्क्वायर प्लस u, ये -1 है.
minus 1. Okay? Then you find the values of u. Middle term. मिडिल टर्म तुम्हें हिंट देगी कि क्या तुम्हें सपोज करना है, सही है, और छोटी पावर होती है जनरली. हाँ, ओके. And minus 1. So tan square theta equals to half tan square theta equals to minus 1. ये तो not possible. स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज निकलेंगी. tan theta equals to plus root of 1 over 2 और tan theta equals to minus root of 1 over 2. ओके. इसके क्वाड्रेंट्स बनते हैं 1 और 3 और इसके क्वाड्रेंट्स बनते हैं 2 और 4. एसेंशियली मुझे 1 और 2 ही लेना है क्योंकि मेरी रेंज जो है वो 0 to 180 है. सही है, तो मैं 3 और 4 वैसे ही इग्नोर कर दूंगा, मैंने लिख दिया अभी. ओके. कैलकुलेटिंग tan इनवर्स of 1 divided by root alpha of tan inverse of 35.26. सो क्वाड्रेंट 1 में आंसर आएगा 35.26. इसका भी अल्फा सेम ही आएगा बिकॉज द एक्सप्रेशन इज द सेम. $144.74. Okay. चलिए आगे. इस पेपर में इंटीग्रेशन कम है. ओके, मैं आंसर चेक कर लूं. अच्छा, मैंने 3 answers in degrees are correct to 1 decimal place, so make sure that you do that. Okay. The diagram shows a symmetrical metal plate. The plate is made by removing 2 identical pieces from a circular disc with center C. The boundary of the plate consists of 2 arcs PS and QS of the original circle, and this PQ and RS as diameters. Okay. The radius of the circle with center C is 4, and PQ equals to RS equals to 4 as well. So 4 जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो बेहतर होता है इसको क्वेश्चन पे ड्रॉ कर लें, उससे एक हिंट अभी आपको फॉरन से मिल जाएगी. ओके, व्हाट इज दैट हिंट? और एंगल 60 डिग्रीज, तो एंगल और सेक्टर पता चल गया मुझे. ओके, जब मैं इसको यहाँ से यूं ज्वाइन करूंगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120. ओके. Okay, show that angle PCS equals to 2 pi over 3 radians. PCS यही पूछ रहा था मैं. Okay, so that angle is, हम लिखेंगे कि PCQ is 60 degrees or pi over 3. So PCS is pi minus pi over 3. 2 pi over 3. Okay, यही 2 मार्क होंगे. There are various ways of doing it. जैसे भी प्रूव करना. Okay.
Okay, find the exact perimeter of the plate. So perimeter of the plate में arc lengths आ रही है बहुत सारी. एक ये arc है, एक ये arc है. ये दोनों बराबर होंगे. And this is half of a circle, semi circle है. तो मैं semi circle से निकाल लूंगा. पहले मैंने कहा कि मैं arc length PS. सही है. फॉर्मूला क्या होता है arc length का? R theta. So the radius is 4 and theta is 2 pi over 3. So 8 pi over 3. Arc length QS भी जो होगी, सॉरी QR भी जो होगी वो भी यही होगी, 8 pi over 3. It's equal on both sides. सही है. Semicircle 2 pi R divided by 2. So ये बना pi into R. Pi, what is the radius of the semicircle? 2. यही इसमें कॉमन मिस्टेक होती है. ओके 2. सो ये 2 pi हो गया. ऐसा एक और भी है. तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया? 8 pi over 3 plus 8 pi over 3 plus 2 pi plus 2 pi. 28 pi over 3. सही है. फिर एरिया. अब एरिया में if you want to you can do it in different ways. सही है. मैं उस दिन someone was solving it, they solved it differently. मैंने solve किया था, वो different solve किया था. What I wanted to do was, मुझे पता है कि I can use this entire circle, but then I would have this shape and this shape as well. What are these shapes? And shapes को क्या कहते हैं? Segments. Segment कहते हैं. How are these calculated? हम कहते हैं कि area of sector minus area of triangle. सही. तो पहले मैं ये segments निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब मैं पूरा circle निकाल रहा हूँगा तो I will have to subtract this and this, and then I will also have to subtract this and this. Okay? तो मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे area of large circle निकालना है, which is pi r square 16 pi. मुझे area of small circle, दो सेमी सर्कल्स हम इनको स्मॉल सर्कल कह रहे हैं, pi 2 square 4 pi. और मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट, which is area of sector minus area of triangle. Okay, sector कौन सा? PCQ. कितना एंगल है इसका? 60 डिग्रीज और पाई ओवर 3. पाई ओवर 3 लेंगे बिकॉज हम हाफ आर स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ ए बी साइन थीटा आराम से निकल आएगा. सो हाफ आर स्क्वायर थीटा half a b sin of c. Okay, 8 pi over 3. Four pi, 4 root 3 pi, 4 root 3 है, sorry, no, 4 root 3. Okay. Okay, so area of plate is 16 pi minus 4 pi minus 2 times area of segment. Sixteen minus 4 minus 16 over 3.
20 pi over 3 plus 8 over 3. Okay, आगे आंसर सही है ना। अब मार्किंग स्कीम अगर मैं दिखाऊं तो उसमें इसी तरह लिखा होगा एक एक कंपोनेंट क्या क्या आपने कैलकुलेट किया हुआ है। प्लीज व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन ऑलवेज डिस्क्राइब इट लाइक दिस। ये देखो, ओके, एक एक चीज उसमें अलग अलग कैलकुलेट, बिकॉज हर चीज के अलग अलग मार्क्स होते हैं। ओके, हर चीज के अलग अलग मार्क्स होते हैं। आप एक एक पार्ट सही करते जाओगे तो आपके पास खुद ही जो है वो मार्क्स मिलते जाएंगे। जरूरी नहीं होता कि आपके सारे मार्क्स लूज हों। उसमें 3 मार्क्स तो बहुत आसान है। कौन से 3 मार्क्स? ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, ओके, और स्मॉल सेमी सर्कल, और ये फॉर्मूला लिखना। मैंने मुझे प्लेट चाहिए ना, तो मैंने पूरा सर्कल निकाला है, उसमें से सेमी सर्कल्स भी माइनस किए, और फिर ये जो सेगमेंट थे ये भी माइनस। सेमी सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके नीचे भी एक एरिया है, तो मैंने सेमी सर्कल को मिला के स्मॉल सर्कल कह दिया था। दो मिला के सर्कल बना देंगे ना। ओके, ओके, the next is functions. It says state the range of f. Okay, f जो है वो f of x is given as a quadratic function. This is in the completed square form. इससे आपको क्या पता चल जाता है? टर्निंग पॉइंट पता चल जाएगा, 2, -4. सही। What I have told you before is whenever you want to find the range, make a small sketch. छोटा सा sketch अपने पास बना ले। 2, -4 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा ये फंक्शन जो होगा वो यूं करके ऊपर जा रहा होगा। So इसकी रेंज क्या हो जाएगी? y is greater than or equals to minus. The sketch helps you figure out कि कहाँ पे जाना है। Okay, टर्निंग पॉइंट से यूं करके ऊपर जाना है हमें। The second part is calculating the inverse. Inverse of a quadratic can only be obtained when you have the completed square form. So y equals to x minus 2 whole square minus 4, y plus 4, x को सब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। I need to take a root on both sides now. यहाँ पे एक डिसीजन पॉइंट होता है कि जब रूट लगता है तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज आती हैं, तो आपको कौन सी वाली लेनी चाहिए ये आपकी डोमेन आपको बताएगी। अगर डोमेन जो है वो राइट साइड पे जा रही है, it's increasing, सही है, greater than 2, that means I'm talking about positive values. Okay, सही, चाहे वो नंबर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ -2 भी लिखा होता हम तब भी कहते हैं कि राइट साइड पे जा रही है, तो हम क्या लगाएंगे? रूट के बाहर प्लस लगा देंगे। ओके, यहाँ से सब्जेक्ट बन गया। फिर जगह f इनवर्स x इक्वल्स टू, सॉरी, x लगाने अब। ओके, given that a equals to -5/3. Okay, solve the equation f of x equals to g of x. So x minus 2 whole square minus 4 equals to -5/3x plus 2. Okay, तो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक्स का सवाल लग रहा है। जगह भी नहीं है।
ओके, -4 + 5/3 gives me -7/3. So minus b plus minus root of b squared minus 4ac over 2a. Three and -2/3. Okay, whenever you're doing this question on functions, आपने चेक जरूर करना है कि कौन से आंसर्स आपके वैलिड हो सकते हैं. This is for all real values. But f of x किसके लिए वैलिड था? सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. तो इसमें ये नेगेटिव वाली डिस्कार्ड हो जाएगी. आपका सिर्फ एक आंसर आना चाहिए. अगर आपने मुझे 2 आंसर दिए तो 1 मार्क चला जाएगा. ओके, ये हमेशा फंक्शंस के क्वेश्चन में चेक करना. मेजॉरिटी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं सब में यही ट्रिक है. ये देखो, ओनली ये A1 तभी मिलेगा जब ओनली लिखा हो. ओके, फिर ये कहता है इट इज गिवन इंस्टेड दैट जी एफ इनवर्स equals to 62. Find the possible values of A. Okay, now GF inverse. तो पहले तो G हम लिख लेते हैं AX +2 और F इनवर्स X क्या आया था? 2 plus root of X plus 4. Now again, there will be various ways to do it. Since it's a lot of marks, better है कि मैं function create ही कर लूँ. Okay, what function am I supposed to create? F inverse of X. यानी पहले मुझे जो है वो F inverse of X निकालना चाहिए, फिर उसको दोबारा G में लगाना है. नहीं, फंक्शंस को इस तरह सेपरेट नहीं कर सकते. F of 62 नहीं कर सकते. F of 12 है ये. F इनवर्स ऑफ 12 है. सही है. वैसे तो मैं डायरेक्ट नंबर से स्टार्ट कर सकता हूँ. F इनवर्स ऑफ 12 निकाल सकता हूँ. आई डोंट रियली नीड टू क्रिएट अ फंक्शन. मुझे अब नजर आया. खैर, लेकिन तुम फंक्शन को इस तरह दूसरी साइड पे नहीं लेके जा सकते. उसके अपने रूल्स होते हैं. इस तरह डायरेक्ट नहीं होता. ओके, और खासतौर पे यहाँ पे नंबर है ना, तो यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ओके, पहले F इनवर्स ऑफ 12 निकाल लेते हैं. दैट्स सिंपल. 2 + 4 6 बन गया. तो ये क्या बन गया? G of 6 equals to 62. Now what is G of 6? मैं कहा G of 6 भी निकल सकता है. ये बना 6a + 2. तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? G of 6a + 2 equals to 62. Now what is G of 6a + 2? तो आपने कहा कि फिर से जो है वो x की जगह 6a + 2 लगा दो. सही है, because this was G of x. So I get 6a squared plus 2a plus 2 equals to 62. 6a squared plus 2a minus 60 हो जाएगा. फिर से -b plus minus b squared minus 4ac over 2a. Three and -10/3. It says find the possible values of a. तो दो आंसर होंगे. सही है. जिसने पेपर बनाया था उसने एंड वाले क्वेश्चन इशारे छाप दिए थे.
Okay. The equation of the circle is this. Find the x-coordinates of the points A and B where the circle intersects the x-axis. जब x-axis को intersect करते हैं तो y 0 होता है. So this is a simple question then. Okay, x square minus 4x minus 77. ये तो simple factorization से नजर आ रहा है मुझे. X minus 11 x plus 7. So x equals to 11, x equals to minus 7. एक a हो जाएगा, एक b हो जाएगा. I'm indifferent right now about which one is a, which one is b, because it doesn't matter. Okay. Then it says find the points of intersection of the tangents to the circle at A and B. Right? Whenever you are confused about a question that has a lot of marks, make a small sketch. Okay? इसका center क्या है? सही? अभी आपको center नहीं नजर आ रहा होगा in fact. तो मुझे center इसका निकालना पड़ेगा. Center कैसे निकालते हैं? By bringing it into the completed square form. Okay? स्पेस है ना काफी सारी. चलो पहले करना स्टार्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस है माइनस है प्लस माइनस है माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 77. अब इसको कैसे करते हैं कि x का स्क्वायर कंप्लीट करना है और एक y का स्क्वायर कंप्लीट करना है. सही है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर का इधर मतलब क्या होता है कि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट आइदर इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आई नो दैट जब इन फॉर्म्स में आ जाता है तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर में बंद हो जाता है और ये a प्लस बी होल स्क्वायर में बंद हो जाता है. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू. मैंने कहा x होल स्क्वायर, द मिडिल टर्म इज 2ab. तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए ताकि मिला के ये 4x बने. ओके. तुम लोगों ने कंपेयरिंग से सीखा हुआ है. यू कैन डू इट विद कंपेयरिंग एज वेल. तुम लोगों ने याद किया होगा ना दूसरी साइड पे क्या होता है. सही है. व्हिच इज फाइन. ओके. मैंने इस तरह सिखाया हुआ है तो मैं इस तरह करता हूँ. ओके. मैं कहता हूँ कि भाई मैं इस फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ. जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो खुद ही ब्रैकेट में बंद हो जाएगा. अब यहाँ पे मुझे क्या टर्म चाहिए होती है? एक प्लस 2 स्क्वायर चाहिए होती है ताकि ये मिला के बंद हो जाए x माइनस 2 होल स्क्वायर. इसी तरह when I complete the square for y, यहाँ पे 3 आएगा. तो यहाँ पे एक प्लस 3 स्क्वायर लगाऊंगा तो ये मिला के बंद हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर. दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? बिकॉज यू एडेड समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यू एड समथिंग टू द राइट हैंड साइड एज वेल. वही चीजें जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड की वही आप राइट हैंड साइड पे भी ऐड करें. तो क्या बन रहा है? 77 प्लस 4 प्लस 9 90 बन रहा है. अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है. मैंने वैसे ही कैलकुलेट कर दिया. मुझे सिर्फ सेंटर की जरूरत थी तो मैंने कहा ये सेंटर मार्क हो गया विच इज 2 कॉमा माइनस 3. ओके. अब ए और बी कैसे पॉइंट्स थे? द पॉइंट्स दैट वर इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, यानी उन पे y 0 था. क्या क्या पॉइंट्स थे? एक -7 था और एक 11 था. सही है. तो -7 जो हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से, और -11 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. ऊपर क्यों बने? क्योंकि y कोऑर्डिनेट नीचे नेगेटिव था तो वो दोनों पॉइंट्स ऊपर हैं. पूछ वो क्या आ रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, यानी दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस चाहिए होंगी पहले मुझे. सही है. दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस. यहाँ पे टेंजेंट्स की इक्वेशन हमेशा कैसे बनती है? किसका ग्रेडियंट निकालूं? सेंटर और पॉइंट का. सही है. सेंटर और पॉइंट का. तो मैंने कहा मैं AC का ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ. ग्रेडियंट ऑफ AC y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. सही है. तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? 3 फिर y माइनस y1 m x माइनस x1.
एक इक्वेशन हो गई, दूसरी भी निकालनी पड़ेगी। फिर से ग्रेडियंट ऑफ VC -3 -0 2 -11 -3 over -1 over 3 सही है। So gradient of tangent -3 y minus y1 mx minus x सही। Solve simultaneously. -33 -21 is 12. Okay. Point of intersection, तो y coordinate भी निकालना पड़ेगा 27. Okay. Okay. बहुत सारी स्पेस थी, तो सिंपल सवाल था। Okay. The equation of a curve is this. Find the equation of the normal to the curve. तो dy by dx निकालना पड़ेगा। पहले मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, power half minus x. So dy by dx is half into 2 3x plus 4 half minus 1 into 3. So बन गया 3x plus 4 power minus half minus 1. Okay. क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है, तो पहले टेंजेंट का ग्रेडियंट आएगा एट x equals to 4. (16 power minus half) 16 power half हो जाएगा 16 power minus half. चलो देखते हैं। ये बन रहा है 3 over 4 minus 1 is -1 over 4. That is the gradient of tangent. Gradient of normal 4 y minus y1 mx minus x. So ये सारे 4 दिए हुए थे इसलिए y equals to 4x minus 16 plus 4. Okay. Find the coordinates of the stationary point. So dy by dx equals to 0. 3 times 3x plus 1 plus 4 power minus half minus 1 equals to 0. Okay. Squaring both sides. फाइव over 3. कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो y भी निकालना पड़ेगा। (9 3 6 18 minus 5). Okay, चेक कर लेते हैं, थोड़े अजीब से आंसर्स आए तो आई डोंट नो इफ दे करेक्ट। इसका आंसर सही आया था। सही 2,27 आया था। सही, ये भी सही है। 13 over 3 था ना। 13 over 3. Determine the nature of these stationary points. Okay.
तो ऐसे डबल डिफरेंशियल जाहिर सी बातें करना पड़ेगा। मैं देखा दूसरा तरीका भी है या नहीं। चलो डबल डिफरेंशियल ही कर लेते हैं। क्या निकाला था हमने dy बाई डी एक्स? 3x प्लस 3 इंटू 3x। ओके, डबल डिफरेंशियल -3/2 3x प्लस 4 पावर -3/2 माइनस 0। ओके, at x equals to 5/3। ओके, ये नजर ही आ रहा है, इट्स गोइंग टू कम आउट नेगेटिव। मैं कैलकुलेट ना भी करूं। ओके, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, अंदर पॉजिटिव है, अंदर वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट। ओके, find the exact area of the shaded region bound by the curve, the x-axis and the lines x equals to 0 है। हाँ, इंटीग्रेशन से होगा, लिमिट्स 0 to 4 हो जाएंगी। 0 से 4 तक जब आपने इंटीग्रेट करना हो तो सही है। अब यहाँ पे कर्व नहीं बना हुआ तो आपने कहा कि डायरेक्टली हो जाएगा, बस ये 2 टाइम्स 3x प्लस 4 पावर हाफ, अरे क्या था, -x। एक पावर बढ़ गई, नई पावर से डिवाइड हो गया। ओके, और लिमिट्स लग गई। अच्छा, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन मैंने नहीं लिखी, सही है, इंटू 3। ओके, क्या बना, लिमिट्स लगा लेते हैं, फिर कैलकुलेटर पे एक साथ रख लूंगा मैं। नो नीड टू डू इट मैन्युअली। ओके, जीरो वाली टर्म्स के लिए यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। सारे जीरो नहीं हो जाएगा, इधर रह भी रहे, अगली वाली टर्म पूरी जीरो है। ओके, ये 16 पावर 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 2। ओके, सही है जी, हो गया खत्म।